Hello friends, myself Ras Deepak Singh, and in this particular video we are going to discuss like best of 60 in 4 parts. Okay, it means that in this particular video we are going to do like 240 questions. Okay, like earlier मतलब मैं बेस्ट ऑफ 60 चला रहा था लाइक मंथ वाइज यू कैन से दैट विद रिस्पेक्ट टू द मंथ्स. सो ये वीडियो लाइक आपको 4 पार्ट में लाइक हर एक पार्ट का 60 क्वेश्चंस है. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक बेस्ट ऑफ 240 क्वेश्चन फॉर द मंथ ऑफ मई महीने का. ओके, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट the questions which we are going to discuss right now is like very important and being taken like with respect to the exam perspective. It is like very recommended that these type of questions, or you are going to get some question from these like discussed questions which we are going to discuss right now in this particular video. Okay, so जो भी like मेरे viewers है, I just recommend you like वो अपना like जीके जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज तो like प्रिपेयर कर रहे होंगे. मैं बस ये कहूँगा कि ये जो वीडियो है ये लाइक एक रिवीजन वीडियो कि आपने जितना भी लाइक मई मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ा हो लाइक डिफरेंट सब पार्ट्स में. सो ये एक्चुअली में आपको हर एक कैटेगरी में एक मतलब रिवीजन करा देगा. ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू लाइक हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्या बोलते हैं क्वेश्चंस बाय क्वेश्चन 240 क्वेश्चंस स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं. 240 क्वेश्चंस को लाइक एक बार रिवाइज करेंगे. ओके, सो ट्राई टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज लाइक द क्वेश्चंस द 240 क्वेश्चंस I will suggest you that these are very important question for FCI, AGM, General Administration and Technical. The students who are preparing for this FCI, AGM, General Administration and Technical, it is going to be very beneficial when you are going to give the real exam. So why not like enhancing your preparation by revising those current affairs of May month. Okay, so let's start. Hello friends, myself Ras Deepak Singh, and in this particular video we are going to do the current affairs of May. Okay, for the month of May. So in this video I am going to give you like best of 60 questions with respect to the month of May month. Okay, so I just want to tell you that in this particular video we are going to do 4 parts in a single video, which is of best of 60 questions. Okay, it means that this video contains 240 questions. Okay, you are going to get 240 questions which is most important questions with respect to exam point of view for FCI, AGM, General Administration and Technical. And these questions are like direct questions, direct answers. So I am not going to give you like एडिशनल थिंग्स बिकॉज क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम 240 जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये अपने में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि लाइक सिर्फ क्वेश्चंस को करेंगे. ओके, सिर्फ क्वेश्चंस पे स्टिक करेंगे. और ये 240 क्वेश्चंस अगेन आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द मंथ ऑफ मे. Okay, these questions you can say that are highly recommended for the exam point of view, and you can say that this is a revision video. Okay, 240 questions for my month as a revision video for FCI, AGM, General and for Technical both. Okay, so without wasting time, let's start this video. So our first question is, Swas and Arog are the 2 new loan products launched by which institution amid the fight against COVID-19. तो ये बेसिकली सिडबी ने किया था. ओके, और सिडबी का जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, स्वास और आरोग 2 न्यू लोन प्रोडक्ट्स स्कीम लॉन्च की थी विच इंस्टीट्यूशन अमिड द फाइट अगेंस्ट COVID-19. तो दिस इज़ डन बाय सिडबी. और सिडबी का हेडक्वार्टर लाइक लखनऊ में है. उसके चेयरमैन आपके हैं एस रमन. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
The TriFed has recently signed an MOU with which organization for the project Sustainable Livelihoods for Tribal Households in India? So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द लिंक फंड. ओके, द ट्राइफेड हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोजेक्ट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर ट्राइबल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया. सो द करेक्ट आंसर इज़ द लिंक फंड. What is the global rank of Indian insurance major LIC in the 2021 Brand Finance Insurance 100 report that measures most valuable insurance brand globally? यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है LIC उसकी रैंकिंग पूछा है. जो एक ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट आया था उसमें जो LIC की जो रैंकिंग थी वो 10 थी. ओके, 10 इज़ द करेक्ट आंसर. Now RBI has joined the central bank and supervisors network for greening the financial system as member. Where is the secretariat of NGFS? Most important question with respect to exam point of view. Network for greening the financial system का like आप कह सकते हो जो secretariat आप कह सकते हो जो ऑफिस है वो पेरिस में है. फ्रांस की राजधानी पेरिस में. ओके, again repeating this question, Reserve Bank of India has joined the central bank and supervisors network for greening the financial system, okay, as member. Where is the secretariat of NGFS located? This is located at Paris. What was the profession of रोहित सरदाना? आपको पता है रोहित सरदाना जो अभी नहीं रहे वो बेसिकली जर्नलिस्ट थे. ओके, इनका एक शो आता था लाइक दंगल करके. डिफेंडर यूरोप 21 is multinational military exercise being held under the leadership of US Army with which organization group? तो ये नाटो के द्वारा हुआ था. नाटो का लाइक आप फुल फॉर्म कह सकते हो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रसल्स में है. Move to the next question. Name the MD and CEO of Axis Bank who has been reappointed for 3 years on the post by bank board. तो एक्सिस बैंक के जो MD और CEO हैं वो है अमिताभ चौधरी. नाउ व्हेन इज़ द इंटरनेशनल वर्कर्स डे कॉमेमोरेटेड? 1 May में. ओके, पिंग एंड इंश्योरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फॉर श्योर यू आर गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. पिंग एंड इंश्योरेंस हैज़ इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड इन ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट फॉर 2021. द कंपनी बिलोंग्स टू विच कंट्री? लुक, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था प्रीवियसली कि जो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट निकाली गई है इसमें जो LIC की जो रैंकिंग है वो 10 है. और इसी रिपोर्ट में पिंग एंड इंश्योरेंस करके एक कंपनी है, इसमें इसका पूछा है कि ये वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है, ये किस क्या बोलते हैं कंट्री का है? तो पिंग एंड इंश्योरेंस लाइक आप कह सकते हो ये चाइना का है. ठीक है, अगेन आई एम सेइंग पिंग एंड इंश्योरेंस हैज़ emerged as the world's most valuable insurance brand in brand finance insurance 100 report. Okay, so Ping and Insurance जो कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी है और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी है, चाइना की है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आप इसको करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सोली सोराबजी हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर डैश ऑफ इंडिया. ये अटॉर्नी जनरल थे सोली सोराबजी. Now, how many Indian naval ships have been deployed under the Operation Samudra Setu? Very important. To bring medical oxygen cylinders and associated medical equipments from various countries to India. तो इसमें बेसिकली 7 जो इंडियन नवाल शिप्स को डिप्लॉय किया गया था समुद्र सेतु 2 के लिए 7. ठीक है. वर्ल्ड टूना डे, ये तो क्वेश्चन आई थिंक आया था अभी प्रीवियसली जो एग्ज़ाम्स मेंस के हुए थे उसमें ये क्वेश्चन मुझे मिला था. हाँ, वन ऑफ द एग्ज़ाम्स में लाइक वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्यूना डे 2 May को मनाया जाता है. नेम द फर्स्ट एवर वुमेन ऑफिसर ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO हु हैज़ टेकन ओवर एज ऑफिसर कमांडिंग एज रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी RCC टू हैंडल रोड प्रोजेक्ट नियर इंडो चाइना बॉर्डर. तो ये है वैशाली S. हिवाजे, महाराष्ट्र की हैं, पुणे महाराष्ट्र की वैशाली S. हिवाजे.
ये फर्स्ट एवर वुमेन ऑफिसर बनी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ टेकन ओवर एज कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी RCC टू हैंडल रोड प्रोजेक्ट नियर इंडो चाइना बॉर्डर. ओके, सो वैशाली एस हिवाजे. Now next question is Pandit Debu Chaudhary who has passed away recently was a legendary player of which ये सितार, ये सितार बेसिकली बजाते थे. ओके, पंडित देबू चौधरी सितार. Now move to the next question. Which country has become the first nation to introduce regulation to use self-driving vehicles at slow speeds on motorways? तो ये जो है इसका यूनाइटेड किंगडम है. Which country has become the first nation to introduce regulation to use self-driving vehicles at slow speeds on motorways? United Kingdom. Now next question is which Indian logistics company has launched the Oxygen on Wheels project for transportation of oxygen directly from producing plants to hospitals and homes? तो ये है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने किया था. लाइक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जो कंपनी थी उसने लॉन्च किया था ऑक्सीजन ऑन व्हील्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस प्रोफेशन ऑफ विक्रमजीत कन्वरपाल हु हैज़ पास्ड अवे. ये बेसिकली विक्रमजीत कन्वरपाल एक एक्टर थे, रिसेंटली पास्ड हुए हैं. व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड GDP जो इंडिया की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022? जो बार्कलेज है उसने क्या रेटिंग दी है? बार्कलेज एक रेटिंग एजेंसी है जिसने इंडिया की जो GDP है 2022 के लिए वो 10% बताया. ठीक है. पिनारी विजयन जो है चीफ मिनिस्टर बने अभी केरला के, अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ था. तो ये कौन से हुए चीफ मिनिस्टर थे, मतलब पहले? तो ये 12th चीफ मिनिस्टर थे ऑफ द स्टेट. ओके, move to the next question. When is the World Press Freedom Day commemorated all over the world? Very important question. World Press Freedom Day कब मनाया जाता है? लाइक 3rd of May को मनाया जाता है. ठीक है, 3rd May को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कॉमेमोरेट किया जाता है. Now with which non-Quad country has India decided to establish 2+2 dialogue at the Foreign and Defence Ministry level in a first of its kind initiative? तो लुक, सबसे पहले तो क्वाड कंट्रीज़ में मैं बता दूँ, क्वाड कंट्रीज़ जो होती हैं लाइक इंडिया हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया. ये 4 जब कंट्रीज़ मिलती हैं तो क्वाड कंट्रीज़ होती हैं. ठीक है, इंडिया, फिर जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया. रिमेंबर दिस. और नॉन क्वाड में इसमें पूछा है, लेकिन इसमें पूछा है विद विच नॉन क्वाड कंट्री. तो इसमें नॉन क्वाड कंट्री कौन सी है जिसने इंडिया के साथ 2+2 डायलॉग एट द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्री लेवल पे रिसेंटली अभी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रशिया के साथ किया है. रिमेंबर दिस. रशिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन है. ओके, now move to the next question. Name the 4th deputy governor of RBI who has recently been appointed in place of BP Kanugo. अभी BP Kanugo जो लाइक RBI के one of the 4 डिप्टी गवर्नर्स थे, उन्होंने लाइक रिज़ाइन कर दिया है. तो उसकी जगह इन्होंने T रविशंकर को लिया है. 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं RBI में. लाइक एक तो T रविशंकर हैं, एक आपके महेश कुमार जैन हैं, एक आपके माइकल पात्रा हैं और एक M राजेश्वर राव हैं. ठीक है, 4 हो गए डिप्टी गवर्नर. ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द विनर ऑफ द 2021 पोर्तुगीज़ ग्रैंड प्रिक्स? तो इसका लुइस हैमिल्टन है. नाउ थिसारा पेरेरा जिन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग फॉर विच कंट्री? श्रीलंका के हैं. और थिसारा पेरेरा जो थे इन्होंने क्या बोलते हैं अभी 6 बॉल में 6 6 मारने का रिकॉर्ड बनाया है. लुक, इस साल 2 लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया है 6 बॉल पे 6 मारने का. एक है कायरन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं और एक थिसारा पेरेरा है जो कि श्रीलंका के हैं. और इन्होंने अभी क्या बोलते हैं तुरंत रिटायरमेंट ले लिया. कहाँ? फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से. ओके, श्रीलंका का था थिसारा पेरेरा. Now move to the next question. When is the World Laughter Day observed? तो World Laughter Day आपका बेसिकली 1st Sunday of May को मनाया जाता है. ठीक है,
Now, the International Dawn Chorus Day is an annual observance to celebrate the sound of birds. When is the day observed? First Sunday of May. Again, first Sunday of May. The correct answer is first Sunday of May. International Dawn Chorus Day और ये आपका World Laughter Day दोनों फर्स्ट संडे ऑफ मे को मनाया जाता है. What is the theme of World Press Freedom Day 2021? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड ये थीम था. ठीक है. Now the International Firefighters Day is celebrated annually on which day? ये 4 मई को मनाया जाता है. International Firefighters Day is celebrated annually on 4 मई 4th of May को मनाया जाता है. Who among these is not serving as one of the deputy governors at RBI? Look, जिन्होंने डिप्टी गवर्नर सर्व नहीं किया है कभी भी, NS विश्वनाथन ने किया है, R गांधी, SS मुंद्रा और T रविशंकर, इन चारों ने किया. इंद्रदीप सिन्हा कोई डिप्टी गवर्नर नहीं रहे कभी भी RBI के टेनवर में. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो गोल्डमैन सैच करके एक रेटिंग एजेंसी है उसने इंडिया की GDP क्या बताई है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए? तो गोल्डमैन सैच ने जो 22 के लिए 11.1% बताया, 11.1%. Now, when is the World Asthma Day observed? Very important question. 5 मई को मनाया जाता है. ठीक है. Chandra Tomar, who has recently passed away at the age of 89, was known as the world's oldest player in which sport event? तो चंद्रो तोमर जो बेसिकली थे वो शूटिंग के थे. ठीक है. Who has recently अभी पास्ट हो गया, मतलब नहीं रहे, at the age of 89. वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्लेयर इन विच स्पोर्ट इवेंट? शूटिंग. चंद्रो तोमर, शूटिंग. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. PV सिंधु एंड माइकल ली have been nominated as the athlete ambassador for the IOC Indian Olympic Committee's Believe in Sport campaign by the Badminton World Federation. Michael Lee plays for which country? Canada. Canada के लिए खेलते हैं. Now which day? Again this question is very important question. ये स्पोर्ट्स के फील्ड में है, आप कह सकते हो स्पोर्ट्स का करंट इवेंट है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए. Which day of the year is observed as International Day of the Midwife? Again very important. 5th of May को मनाया जाता है International Day of the Midwife. The Goldman Sachs, ये किया है शायद अभी जो 2021 के लिए पूछा. फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो गोल्डमैन सैक्स है एक रेटिंग एजेंसी है जिसने GDP प्रिडिक्ट किया इंडिया का 2021 के लिए. वो कितना प्रिडिक्ट किया है? 9.7%. The World Hand Hygiene Day is commemorated to raise awareness about the importance of hand hygiene in warding off many serious infections. When is the day observed? So the World Hand Hygiene Day is commemorated to raise awareness about the importance of hand hygiene in warding off many serious infection. तो ये बेसिकली जो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है इसको हम 5 मई को मनाते हैं. ठीक है. जगमोहन मल्होत्रा हुए पास्ड अवे रिसेंटली, फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के थे, जगमोहन मल्होत्रा. महेश बालासुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो महेश बालासुब्रमण्यम है उनको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. Now RBI has imposed penalty of how much amount on ICICI for violating prudential norms in the matter of shifting of securities from one category to another. इसमें 3 करोड़ का फाइन मारा है RBI ने ICICI बैंक को फॉर वायलेटिंग कुछ नॉर्म्स होते होंगे. मैटर भी बताया है ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी. ठीक है. सो इसमें 3 करोड़ का फाइन लगा है ICICI बैंक को. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कोल माइनर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो कोल माइनर्स डे बेसिकली 4th of May को मनाया जाता है, 4 मई को मनाया जाता है कोल माइनर्स डे. हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय RBI टुवर्ड्स स्पेशल ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी अनाउंस्ड फॉर बैंक टू लैंड टू एंटिटीज फॉर एक्सेस टू इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19? लुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर श्योर एग्ज़ाम में लाइक
आ सकता है, मैं रिकमेंड करूँगा। ऐसे ही क्वेश्चंस वो पूछते हैं, लाइक डाटा बेस्ड भी पूछ सकते हैं, और ये डाटा बेस्ड है, ठीक है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टुवर्ड्स स्पेशल ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी अनाउंस्ड फॉर बैंक्स टू लैंड टू एंटिटीज़ फॉर एक्सेस टू इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो इसमें जो RBI है उन्होंने एलोकेट किया है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय RBI ने एलोकेट किया है स्पेशल ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी, और ये 50,000 करोड़ का स्पेशल ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी अनाउंस किया गया है बैंक्स के लिए, फॉर बैंक्स, ओके। 50,000 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट। S&P ग्लोबल रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो GDP ग्रोथ है वो कितना बताया है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स। तो द करेक्ट आंसर इज़ 9.8%. The correct answer of this question is 9.8%. When is the International No Diet Day celebrated? तो इंटरनेशनल नो डाइट डे को 6 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट बाय अमेरिकन कंपनी स्ट्रैटो लॉन्च सक्सेसफुली completed the second test flight recently. What is the name given to this massive aircraft? ROC. The name of this massive aircraft is ROC. The world's largest aircraft by American company Stratolaunch successfully completed the second test flight recently. तो ये इसको नाम दिया था ROC, ओके, ROC. Who is the winner of the 2021 UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize? मारिया रेसा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फॉर श्योर आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। मारिया रेसा इज़ द विनर ऑफ 2021 यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ के लिए मारिया रेसा को मिला है। India has recently launched ambitious 10-year roadmap with which country to elevate the bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership and more than double bilateral trade by 2030. तो 10 साल का रोड मैप तैयार किया इंडिया ने बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के साथ, ओके। यूनाइटेड किंगडम्स के साथ 10 साल का इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है, और यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन, उनके साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने ये आप कह सकते हो ये 10 साल का रोड मैप साइन किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नुवान जोइसा जो अभी रिसेंटली एक क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्हें बैन किया गया ICC के द्वारा 6 साल के लिए फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम, लाइक T20, टेस्ट और क्रिकेट तीनों फॉर्मेट से बैन कर दिया गया था 6 साल के लिए। तो फॉर वायलेटिंग ICC एंटी करप्शन कोड, ठीक है। और वो किस कंट्री के थे? तो ये बेसिकली श्रीलंका के थे, नुवान जोइसा, ठीक है, नुवान जोइसा। What amount of liquidity support has been announced by RBI for the small finance bank under a special long-term repo operation LTROs to lend to MFIs amid COVID-19 crisis? तो इसमें 10,000 करोड़ का जो क्या बोलते हैं लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है। लोग 10,000 करोड़ का लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को अंडर अ स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTROs। क्यों दिया है स्मॉल फाइनेंस बैंक को? ताकि RBI है उसने 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को, इसलिए दिया है कि क्योंकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो क्या बोलते हैं इस लोन को लैंड करे, यानी कि लोन दें किसको? माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है उनको लैंड करने के लिए अंडर अ स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के अंडर में, ठीक है। स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के अंडर में एक जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन उसने उसी एक फील्ड में स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का मतलब होता है कि ड्यूरेशन, LTRO का मतलब होता है ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जो आपका रेपो रेट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर मंथ या फिर
कुछ भी होंगे हमेशा लेस देन 1 ईयर्स होंगे, रिमेंबर दिस। लेकिन जो स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो LTROs होते हैं वो लाइक उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, 1 साल से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म बोला है ना, इसलिए टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें 10,000 करोड़ का LTRO लाइक सपोर्ट है RBI का स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ताकि वो MFIs जो माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लाइक लैंड करने के लिए 10,000 करोड़ इज़ द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को कब मनाया जाता है? बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द IAAF, तो ये बेसिकली 7 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द IAAF 7 मई को, ओके। फिच सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, रेटिंग एजेंसी है फिच सॉल्यूशन। इसने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए इंडिया की GDP को क्या प्रोजेक्ट किया? 9.5%। 9.5% जो है वो फिच का है, रिमेंबर दिस। 9.5% क्या है? फिच का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंगलुरु इज प्लेस्ड एट 40th पोजीशन इन द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 रिपोर्ट 2021. Which ranks global cities in terms of increase in prime residential prices? The index is published by which entity? तो ये जो बेसिकली इंडेक्स है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2021 रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है? तो ये नाइट फ्रैंक ने पब्लिश किया है, नाइट फ्रैंक। और नाइट फ्रैंक ने इस रिपोर्ट में बेंगलुरु को 40th पोजीशन पे रखा है, 40th पोजीशन पे। विच रैंक्स ग्लोबल सिटीज़ इन टर्म्स of increase in prime residential prices, okay, remember this. The correct answer is Knight Frank, जो कि ये रिपोर्ट को जारी करता है। गोपाबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट फॉर द वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ द स्टेट। तो ये उड़ीसा की गवर्नमेंट ने गोपाबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया है। When is the World Athletics Day 2021 being observed by the IAAF? तो 5th of May is the correct answer. World Athletics Day 2021 being observed by the IAAF. So look, ये क्वेश्चन लाइक आंसर गलत है। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, अभी हमने प्रीवियसली इस क्वेश्चन को पढ़ा था कि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2021 है IAF के द्वारा, जो क्या बोलते हैं बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द IAF, वो 7 मई को मनाया जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो 7 मई। Arauca Bridge is the world's longest pedestrian suspension bridge. It has recently been inaugurated in which country? तो ये ब्रिज पुर्तगाल में है। पुर्तगाल का जो कैपिटल है वो लिस्बॉन है, ठीक है, पुर्तगाल में है ये ब्रिज, Arauca Bridge, remember this. 5 India's top oil and gas PSU have inked a MOU for construction and redevelopment of which pilgrimage site as a spiritual smart hill town. तो ये बेसिकली जो 5 इंडियाज़ की टॉप ऑयल एंड गैस PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उन्होंने मिल करके एक MOU को साइन किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ एक पिलग्रिमेज साइट है एज ए स्पिरिचुअल स्मॉल हिल टाउन। उसका नाम है बद्रीनाथ, ठीक है। तो जो बद्रीनाथ है ये बेसिकली उत्तराखंड में है। चौधरी अजीत सिंह हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? तो ये राष्ट्रीय लोक दल के पार्टी को इन्होंने बनाया था। जो चौधरी अजीत सिंह हैं उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल को बनाया था, पार्टी को नहीं रहे अब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लोक दल। द फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो हुआ था was held recently in which city?
The first ever India France Australia trilateral foreign ministerial dialogue was held recently in which city? तो ये लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में लंदन में हुआ था। इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग था ये बेसिकली लंदन में हुआ था, ठीक है। सो वी कल्याणम द veteran freedom fighter who has passed away recently was the only surviving personal secretary of which Indian leader? तो ये महात्मा गांधी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब जो वी कल्याणम हैं एक वेटरन फ्रीडम फाइटर थे जो कि नहीं रहे, और इन्होंने लाइक ये महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी। ओके, सो वी कल्याणम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फॉर श्योर आपको मिल सकता है एग्ज़ाम में in the upcoming mains exam. Which city has topped the Prime Global Cities Index Q1 report for registering the most strongest growth in prime residential prices during January to March 2021? तो ये है शेंज़ेन है, शेंज़ेन, रिमेंबर दिस। शेंज़ेन एक सिटी है जिसने टॉप किया प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q1 2021 फॉर रजिस्टरिंग द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ इन प्राइम रेसिडेंशियल प्राइजेस ड्यूरिंग जनवरी मार्च 2021। द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रेसिडेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। जो वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसिडेंट डे है, क्रिसेंट वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे वो 8 मई को मनाया गया है, ठीक है। लुक, बेस्ट ऑफ 60 का एक पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है, 60 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट 60 करते हैं अब। लेट्स स्टार्ट। RBI has constituted an advisory group to assist the regulatory review authority. Who is the head of this advisory group? तो एक रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी RRA 2.0 को बनाया गया है। इसके लिए एक एडवाइजरी ग्रुप भी बनाया गया है। उसके हेड कौन है, मतलब उसको हेड किसने किया उस एडवाइजरी ग्रुप के? लुक, 2 है। एक रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी RRA 2.0 है और एक है हेड ऑफ द एडवाइजरी ग्रुप। मतलब कि इसी अथॉरिटी के लिए, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी को लाइक वो करने के लिए, हेड करने के लिए एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। उसके जो चेयरमैन हैं वो है S जानकी रमन, रिमेंबर दिस, S जानकी रमन, ठीक है। S जानकी रमन इज़ द करेक्ट आंसर। लुक 2 चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में, इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको इसको क्लियर बता देता हूँ। एक है आपका रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, रिमेंबर दिस, और एक है आपका एडवाइजरी ग्रुप जो कि इसको रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी को मॉनिटर करेगा। तो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी का मैंने चेयरमैन नहीं बताया आपको इस क्वेश्चन में, मैंने आपको एडवाइजरी ग्रुप जो इसको असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा इस अथॉरिटी को, उसका हेड बताया है। हु इज़ द हेड ऑफ दिस एडवाइजरी ग्रुप? वो है S जानकी रमन, रिमेंबर दिस। और जो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी है RRA 2.0 उसके जो हेड बने हैं, उसका जो चेयरमैनशिप है वो M राजेश्वर राव को मिला है, ठीक है। M राजेश्वर राव, रिमेंबर दिस, डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI M राजेश्वर राव ही है, यस। M राजेश्वर राव जो है वो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस अगेन, आई एम सेइंग, जो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी है RRA 2.0 उसके जो लाइक चेयरमैन है वो M राजेश्वर राव हैं, और जो एडवाइजरी ग्रुप है उसके बेसिकली कौन है आपके, ये S जानकी रमन, ठीक है। सो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, RRA 2.0। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ S जानकी रमन, ठीक है। Now move to the next question. Who has been sworn in as the new chief minister of Tamil Nadu after? तो ये MK स्टालिन है DMK पार्टी से। लाइक लुक, जो तमिलनाडु में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था उसमें जो पहले लाइक इस इलेक्शन से पहले जो पार्टी जो रूल कर रही थी तमिलनाडु पे वो थी AIADMK, ठीक है। उस टाइम पे पनीर सेल्वम करके वो चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के। लेकिन अभी रिसेंटली इलेक्शंस में MK स्टालिन जो DMK पार्टी से हैं, लाइक उन्होंने जीत दर्ज की है और इसलिए ये चीफ मिनिस्टर बने हैं तमिलनाडु के, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज़ MK स्टालिन।
वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसिडेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 8th of May, रिमेंबर दिस। नाउ व्हेन इज़ द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व्ड? तो ये भी 8 मई को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को। नेम द न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एन रंगास्वामी। तो ये बेसिकली AINRC पार्टी जो है उसके वो हैं, उसके ही मेंबर हैं। एन रंगास्वामी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में भी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, उसमें AINRC की जीत हुई। तो उसके जो कैंडिडेट थे एन रंगास्वामी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। द टाइम ऑफ remembrance and reconciliation of those who lost their lives during the Second World War is a United Nations recognized day observed every on 8th और 9th मई को मनाया जाता है। ठीक है, 8 और 9 मई को मनाया जाता है द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये 8th और 9th को और ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करता है इस डे को। ठीक है, 8 से 9 मई को मनाया जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू चिल्ड्रन बुक टाइटल द बेंच? मेगन मार्कल इज़ द करेक्ट आंसर। मेगन मार्कल है आपकी, मेगन मार्कल द बेंच की इन्होंने द बेंच लिखा है। ठीक है, चिल्ड्रंस की बुक है द बेंच, मेगन मार्कल। वनराज भाटिया was passed away, was related to which profession? तो वनराज भाटिया जो थे म्यूज़िक कंपोज़र थे। BRO observes it raising day every year on 7th of May. In 2020, the Border Road Organization is celebrating which edition of its raising day? तो 61st जो है BRO अपना 61st रेजिंग डे मना रहा है। और लोग जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो एस्टेब्लिशमेंट मतलब ये जब स्टार्ट हुआ था ये बेसिकली 1960s का है। ठीक है, 1960 को ये स्टार्ट हुआ था। तो अभी इसके 61 साल का एडिशन बना रहा है। ठीक है, BRO इज सेलिब्रेटिंग 61st एडिशन ऑफ इट्स रेजिंग डे। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ शेष नारायण सिंह हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? तो शेष नारायण सिंह एक जर्नलिस्ट थे, एक तरह से आप कह सकते हो जर्नलिस्ट थे जो अभी रिसेंटली पास्ट हो गए, मतलब नहीं रहे। और ये जो शेष नारायण सिंह थे आप इनको बहुत बार आपने इनको TV चैनल्स पे देखा होगा, जर्नलिस्ट थे बेसिकली। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे? तो इसका जो थीम था वो था अनस्टॉपेबल। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज़ एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। What amount of finance contract for second tranche has been signed between India and European Investment Bank for the Pune Metro Rail project during the India European Union Leaders Meeting? तो इसमें बेसिकली 150 मिलियन जो यूरो है, 150 मिलियन यूरो का यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इंडिया को दिया है एज अ लोन। हैज़ बिन साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। किसके लिए? पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, जो पुणे में मेट्रो रेल बन रही है उसके लिए दिया है। ठीक है, 150 मिलियन यूरो, 150। विच ऑफ दीज डेज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे? तो वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे बेसिकली सेकेंड सैटरडे ऑफ मे को मनाया जाता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ मे। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था 2021 में 9 मई को, उसमें किसने जीता है ये स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स? तो ये बेसिकली लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, लुइस हैमिल्टन। महाराज कृष्ण कौशिक, रविंद्र पाल सिंह, और महाराज कृष्ण कौशिक एंड रविंद्र पाल सिंह जो कि अभी नहीं रहे, ये इंडिया के कौन से फील्ड से थे? मतलब बोथ इंडियन प्लेयर्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये हॉकी के थे, हॉकी। हु हैज़ बिन स्worn इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? जिन्होंने सर्बानंद सोनोवाल को रिप्लेस किया, हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, पहले हेमंत बिस्व शर्मा ये कांग्रेस पार्टी में थे
और 2015-16 में लाइक 16-17 में स्विच कर दिया इन्होंने, कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। तो यही वो कैंडिडेट थे, मतलब यही एक पॉलिटिशियन थे लाइक जिन्होंने CAA को, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसको इंट्रोड्यूस्ड किया था असम की स्टेट में। क्योंकि असम में जो लाइक ये आपका NRC हुआ था, जो CAA को लाइक में उसमें नेशनल रजिस्टर टू सिटीजन्स जो हुआ था NRC, वो इन्हीं शख्स ने असम में कराया था। जिसके बाद से लाइक ये बात उठी थी कि पूरे होल ओवर इंडिया में ये CAA को जो अमेंडमेंट बिल आया था NRC को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो उसके बाद बहुत सारे आपने देखे होंगे दंगे वगैरह हुए थे। सो लाइक फर्स्ट स्टेट था असम जिसने CAA को लाइक इम्प्लीमेंट कराया था, देखा था, ठीक है। तो उसको जो कराया था वो यही थे, हेमंत बिस्व शर्मा, रिमेंबर दिस। और इनको ही चीफ मिनिस्टर ऑफ असम बना दिया गया, ठीक है। बीजेपी से हैं ये। विच प्लेयर हैज़ क्लिंच्ड द मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल्स टाइटल? जो 2021 में मैड्रिड ओपन हुआ है, वो वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्यना साबालेंका, ठीक है। आर्यना साबालेंका इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो आर्यना साबालेंका है जिन्होंने मैड्रिड ओपन 2021 जीता, ये बेसिकली बेलारूस की हैं, ठीक है। बेलारूस की हैं ये आर्यना साबालेंका, रिमेंबर दिस। द बुक टाइटल्ड एलिफेंट इन द वॉर्म, तो ये किसने लिखा है? बेसिकली ये काल्की कोएच्लिन है, मतलब एक इंडियन एक्ट्रेस हैं। एलिफेंट इन द वॉर्म इन्होंने ये बुक लिखा है। और इन्होंने लाइक बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है। वन ऑफ द मूवीज़ जो मुझे याद आ रही है लाइक आई डोंट नो, काल्की कोएच्लिन, ठीक है, एलिफेंट इन द वॉर्म। RBI हैज़ एक्सक्लूडेड लक्ष्मी विलास बैंक को हटा दिया गया है सेकंड शेड्यूल्स ऑफ RBI एक्ट 1934। लक्ष्मी विलास बैंक को इसलिए हटा दिया गया है, ये बेसिकली तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर था। तो इसको इस लक्ष्मी विलास बैंक इसको इसलिए हटा दिया गया बेसिकली क्योंकि ये लाइक कुछ घाटे में चल रही थी, ठीक है। और इसका मर्जर कर दिया गया लक्ष्मी विलास बैंक का। इसका मर्जर किया है DBS बैंक इंडिया लिमिटेड, ठीक है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा MP रघुनाथ मोहापात्रा हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ डैश बाय प्रोफेशन, स्कल्पचर थे, ठीक है, स्कल्पचर बाय प्रोफेशन, रघुनाथ मोहापात्रा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे? तो इसका थीम था सिंग, फ्लाई, सोर लाइक अ बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेयर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2021 Laureus Sportsman of the Year award? Very important question with respect to the exam point of view. Again very important question, ठीक है। Which player, कौन से प्लेयर को ऑनर किया गया 2021 के लिए लाइक लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये रफेल नडाल, ये बेसिकली रफेल नडाल आपके बेसिकली स्पेन के हैं, ठीक है, स्पेन मैड्रिड के रफेल नडाल। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, बहुत फेमस हैं रफेल नडाल, स्पेन मैड्रिड। तो इनको लाइक लॉरियस का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रिपोर्ट टाइटल्ड कनेक्टेड कॉमर्स। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, ये नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी किया है। किस कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ? तो वो है मास्टर कार्ड। द नेशनल टेक्नोलॉजी डे कौन से दिन को मनाया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोग-1 मिशन, DOGE, डोग-1 मिशन ऑफ द टू द मून इज़ द फर्स्ट एवर कमर्शियल लूनर पेलोड paid entirely in the cryptocurrency Dogecoin. The mission will be launched by which company in 2022? तो ये मिशन जो डोग-1 मिशन है मून के लिए इज़ द फर्स्ट एवर कमर्शियल लूनर पेलोड पेड एंटायरली इन द क्रिप्टो करेंसी Dogecoin. द मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय SpaceX in 2022. Which player has been named as the ICC Men's Player of the Month for April? तो लोग ICC मेंस प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 में बाबर आजम को दिया गया है। पाकिस्तान का लाइक खिलाड़ी है ये बाबर आजम।
Bollywood actor Anupam Kher has recently won the Best Actor award at the New York City International Film Festival 2021 for which short film? तो ये बेसिकली हैप्पी बर्थडे के लिए, ठीक है, इनको मिला है बेस्ट एक्टर का. Which among the following tennis player has claimed जो मैड्रिड ओपन हुआ था अभी, जैसे कि मैंने आपको वुमेंस का बताया था, आरेना सबलंका जो बेलारूस की थी, इसी में मेंस का पूछ दिया है. मैड्रिड ओपन मेंस का किसने जीता है? तो जो मैड्रिड ओपन है मेंस के लिए अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता है, ठीक है. अलेक्जेंडर ज़वेरेव इज़ द करेक्ट आंसर. इंटरनेशनल डे ऑफ एरेगीनिया कब मनाया जाता है? तो ये 10 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एरेगीनिया, ठीक है, 10 मई. नेम द फीमेल क्रिकेट प्लेयर हु हैज़ वॉन द ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021. तो ये बेसिकली एलिज़ा हेले को दिया गया है ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021. एलिज़ा हेले ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, और जो मेंस में दिया अभी मैंने आपको बताया बाबर आजम को अप्रैल मंथ के लिए दिया गया, वो पाकिस्तान का है. द क्रिएशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन वॉज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ दीज क्रिएचर? तो ये डॉग कॉइन जो है डॉग से इंस्पायर्ड था. एज़ पर द लेटेस्ट GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन, नोमुरा एक रेटिंग एजेंसी है जिसने इंडिया की इकोनॉमी को कितना फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए कितना बताया. तो नोमुरा ने बेसिकली जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 10.5% बताया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच बैंक हैज़ लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट ईवा इन पार्टनरशिप विद कॉमन सर्विस सेंटर्स for educating village level entrepreneurs about banks product and services? तो ये बेसिकली HDFC बैंक ने किया है ईवा, ठीक है. चैटबॉट ईवा HDFC बैंक ने लॉन्च किया है. लोग इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लेटेस्ट GDP ग्रोथ बताइए. मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है जिसने इंडिया की GDP को फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.3% बताया, ठीक है. मूडीज़ ने, रिमेंबर दिस, मूडीज़ ने 9.3% बताया है. इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है, रिमेंबर दिस. इंटरनेशनल नर्स डे को 12 मई को मनाया जाता है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द प्रपोज्ड नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? लुक, ये जो अभी नेशनल एसेट NARCL जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद्म कुमार M नायर को बनाया है, पद्म कुमार M नायर, रिमेंबर दिस. नेम द न्यूली स्वॉर्न इन नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फीसी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO फॉर 2021-22. तो जो नेशनल प्रेसिडेंट बनी है, न्यूली स्वॉर्न इन नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फीसी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2021 बाई, इनका नाम है उज्ज्वला सिंघानिया, रिमेंबर दिस, उज्ज्वला सिंघानिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फीसीज लेडी ऑर्गेनाइजेशन 2021-22 के लिए उज्ज्वला सिंघानिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नासा के जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम क्या है? बिल नेल्सन, रिमेंबर दिस. नासा के अभी न्यू एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब इनको न्यू एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, उनका नाम है बिल नेल्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ KR Gauri Amma, who has passed away recently, was the senior most and second longest serving member of Legislative Assembly in the Legislative Assembly of which state? तो ये केरला, जो KR Gauri Amma थी जो अभी नहीं रही, वो बेसिकली केरला स्टेट की MLA थी, ठीक है. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2021 इंटरनेशनल नर्स डे? तो इंटरनेशनल नर्स डे का जो थीम था वो था नर्सेस, अ वॉइस टू लीड, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर. द इंटरनेशनल नर्स डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? ऑफ विच सोशल रिफॉर्मर? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ द करेक्ट आंसर. Malerkotla has been announced to the 23rd district of which of the following state union territory? तो मलेरकोटला जो है वो बेसिकली पंजाब स्टेट का 23rd डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, ठीक है. Who has topped the world's 50 greatest leader list of Fortune for the year 2021? तो 2021 के फॉर्चून जो क्या बोलते हैं फॉर्चून का जो लिस्ट पब्लिश हुआ था उसमें वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर में किसने टॉप किया है?
तो द करेक्ट आंसर इज जसिंडा आर्डन. जसिंडा आर्डन इज़ द करेक्ट आंसर. नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटेलिजेंट शिप सेट टू नेविगेट अक्रॉस द अटलांटिक. तो इसका नाम था मे फ्लावर 400. ठीक है, फर्स्ट इंटेलिजेंट शिप सेट टू नेविगेट अक्रॉस द अटलांटिक, मे फ्लावर 400. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज इंडिया एंड इंडोनेशिया नेवीज हैव कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज. तो जो पैसेज एक्सरसाइज था इंडिया और इंडोनेशिया ने अरेबियन सी में किया था अभी. ठीक है. पुडुचेरी हैज़ अचीव्ड 100% टैप वाटर. यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, जिसका अभी रंगास्वामी अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं. तो इसमें पूछा है कि 100% टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज़ अंडर विच मिशन. तो ये जल जीवन मिशन में, यानी पुडुचेरी में जो रूरल एरिया हैं, जो गांव के इलाके हैं, वहाँ पे 100% टैप वाटर, वहाँ पे टैप वाटर सबको मिलता है. तो ये जल जीवन मिशन के अंडर में इसको अचीव किया इन्होंने. जो प्राइम मिनिस्टर हैं रिसेंटली, कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के जिन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लॉस्ट कर दिया है, तो इनका नाम है केपी शर्मा ओली. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड. तो ये IRDAI को मिला है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड. तो ये IRDAI को मिला है, IREDA. यूनाइटेड नेशन है जिसने प्रोजेक्ट किया है इंडियन इकॉनमी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए. तो कितना प्रेडिक्शन हुआ है, तो इसका है 10.1% यूनाइटेड नेशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ आई चूज़ माई नंबर फीचर फॉर ऑल इट्स कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज़ माई नंबर. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली कर्नाटका बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है. इसने ही लॉन्च किया आई चूज़ माई नंबर. आई चूज़ माई नंबर, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक. BJ Watling has announced he would be retiring from international cricket after 3 tests including the World Test Championship final. He belongs to which country? तो जो BJ Watling अभी जो इंडिया और न्यूजीलैंड का जो आपने देखा होगा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो फाइनल था, उसके बाद जो BJ Watling थे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. न्यूजीलैंड के थे ये बेसिकली, न्यूजीलैंड. BJ Watling. यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो जारी किया था, उसमें इंडिया की जो GDP का जो ग्रोथ रेट है वो कितना एस्टिमेट किया है फॉर द कैलेंडर ईयर 2021. तो ये बेसिकली 10.1% है. द फर्स्ट ब्रिक्स, आपकी जो द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप है, द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG meeting of 2021 was held recently. Which country is the chair of BRICS in 2021? Look, 2020 में जो ब्रिक्स का चेयरमैनशिप था वो बेसिकली रशिया के पास था. 2019 में ब्राज़ील के पास था. 2021 में इंडिया के पास आया है. रिमेंबर दिस, 2021 में इंडिया के पास आया. और ये बेसिकली ब्रिक्स 2021 इंडिया वो करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा. और द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ 2021 इंडिया ही वो कर रहा है. ठीक है, चेयर कर रहा है आप कह सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन 2020 among low income and middle income countries as per migration and development brief report released by World Bank. तो ये basically India is the correct answer. India is the largest recipient of remittance in 2020 among low income and middle income countries. What is the केयर रेटिंग? एक रेटिंग एजेंसी है जिसने इंडिया की GDP को कितना बताया है ग्रोथ रेट को फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए. तो 9.2% इज़ द करेक्ट आंसर. होमेन बोर्गो हैं हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ वेटरन ऑथर और जर्नलिस्ट थे. कौन से स्टेट के थे? असम के थे. ठीक है, असम. HDFC बैंक भी अब प्रिडिक्ट कर रही है GDP ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए. इसने इंडिया का कितना ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है, GDP ग्रोथ रेट कितना वो किया है, कितना परसेंट बताया? तो ये 10% बताया HDFC बैंक ने.
As per the United Nations World Economic Situation and Prospect Report, the GDP growth rate estimated of India in calendar year 2021 is projected at what? Look, जो आपका ये है यूनाइटेड नेशन, तो इसने बेसिकली जो 2021 के लिए है वो 7.5% बताया है, और जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें 10.1% बताया। रिमेंबर दिस, 2021 के लिए इसने जो जीडीपी प्रेडिक्शन बताया वो 7.5% बताया है, और जो 2022 के लिए बताया है फाइनेंशियल ईयर वो 10.1% बताया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद आपको 2021 का 10.1 बता दिया है, वो 10.1 नहीं है, वो गलत है। 7.5% 2021 का जो प्रोजेक्टेड है वो है, और 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए 10.1% है। रिसेंट लुक, अभी जो प्रीवियसली क्वेश्चन है उसमें मैंने मे बी मिस्टेक हो गया है। 2021 के लिए आप याद कर लें, द करेक्ट आंसर इज 7.5%, और 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए 10.1%। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट ने ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। एयरलाइन करियर गो एयर हैज़ रीब्रांडेड इटसेल्फ टू बिकम अल्ट्रा लो कॉस्ट करियर अमिड कोविड-19 पैंडमिक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी? तो गो एयर ने अपना रीब्रांड यानी चेंज कर लिया नाम, गो फर्स्ट कर दिया है, ठीक है, गो फर्स्ट। लुक, हमने अभी रिसेंटली आप ये कह सकते हो कि जो है बेस्ट ऑफ 60 के 2 पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। यानी कि राइट नाउ हमने 120 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आप ये कह सकते हो पार्ट 3। लुक, 4 पार्ट में मैं कर रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और ये हर एक पार्ट में 60 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल ये वीडियो 240 क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो बताया था। तो 120 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 60 क्वेश्चंस के लिए और करते हैं, मतलब 120 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो नेक्स्ट 3rd पार्ट करते हैं, ठीक है। So first question is, who has topped the world's 50 greatest leaders list of Fortune 2021? लोग अभी ये मैंने बताया आपको, जो वर्ल्ड का जो 50 ग्रेटेस्ट लीडर लिस्ट है ऑफ फॉर्चून फॉर द ईयर 2021 में, इसमें कौन टॉप किया है? जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन इज़ द करेक्ट आंसर। और ये भी मैंने आपको बताया है कि जो गो एयर है, एयरलाइन करियर गो एयर है, इसने अपना रीब्रांड कर लिया है, नाम चेंज कर लिया है टू बिकम अल्ट्रा लो कॉस्ट करियर अमिड कोविड-19। तो इसने अपना रीब्रांड गो एयर से गो फर्स्ट कर लिया है, ठीक है, गो फर्स्ट। 3rd इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ को कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ को 15 मई को मनाया जाता है, ठीक है। मलेरकोटला हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट रिसेंटली? तो मलेरकोटला बेसिकली पंजाब का एक नया डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन 2021? तो केपी शर्मा ओली को प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बने हैं। जो केपी शर्मा ओली हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हैं 2021 के। अभी जो रिसेंटली भी इलेक्शंस हुए थे नेपाल में, उसमें केपी शर्मा ओली ने जीता है, तो ये अब प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, ठीक है। 2021 का भी रिसेंटली हुआ था। इंदू जैन, a pioneering philanthropist and media personality, has passed away. She was the chairperson of which media group? तो इंदू जैन बेसिकली टाइम्स ग्रुप की थी। इंदू जैन टाइम्स ग्रुप की थी। रिमेंबर दिस। The 4th edition of India-Swiss Financial Dialogue was held virtually. Who led the India delegation in the conference? तो इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक फाइनेंशियल डायलॉग हुआ था, तो इसमें इंडिया का डेलीगेशन संभाला था अजय सेठ ने। अजय सेठ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ जो 2021 का इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ है, उसका थीम क्या है? तो इसका थीम है फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ फ्रॉम इंडिया हु हैज़ अचीव टॉप रैंक इन द फॉर्चून वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021। लुक,
अभी तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्च्यून का जो लिस्ट निकला था वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 में, इस लिस्ट में जो टॉप किया है उनका नाम है जेसिंडा आर्डन। लेकिन इसमें पूछा है इंडिया में किसने टॉप किया है, इंडिया से कौन है, मतलब कोई है कैंडिडेट, तो इंडिया से हैं आधार पूनावाला। आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, जिसने क्या बोलते हैं लाइक आपका कोविशील्ड जो आप लगवाते हैं अभी रिसेंटली, कोविशील्ड के जो बना रही है कंपनी, वो यही कंपनी बना रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये पुणे महाराष्ट्र में कंपनी है और इसी के चेयरमैन है आधार पूनावाला, रिमेंबर दिस। और इनको वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 में इंक्लूड किया गया है और इंडिया से हैं, लाइक इंडिया में इन्होंने, इंडिया से हैं ये जो जिन्होंने टॉप किया है, मतलब इंडिया के कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया, यानी इंडिया से ये पहले शख्स हैं, लाइक पहले नंबर पे, ठीक है, आधार पूनावाला। अर्जुना अवार्ड विनिंग वेणुगोपाल चंद्रशेखर हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो जो अर्जुन अवार्ड विनिंग है वेणुगोपाल चंद्रशेखर, ये बेसिकली टेबल टेनिस खेलते थे, ठीक है, टेबल टेनिस। नाउ इसमें पूछा है नेम द विनर ऑफ द 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज़। शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। 2021 का जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ था उसके जो विनर हैं वो हैं शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड, रिमेंबर दिस, हु हैज़ बीन recently appointed as one of the 4 vice president of the International Council for Advertising Self-Regulation from India in 2021। तो इंडिया से बेसिकली जो एज वन ऑफ द 4 वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम, एक का नाम जो है मनीषा कपूर है, उसमें से जो एक हैं वो 4 वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जिसमें एक मनीषा कपूर हैं। लोग मनीषा कपूर, इंटरनेशनल काउंसिल्स फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, फ्रॉम इंडिया इन 2021। तो मनीषा कपूर इज़ द करेक्ट आंसर। अनूप भट्टाचार्य एक नोटेड फ्रीडम एंड पायनियरिंग म्यूजिशियन है जो कि नहीं रहे। ये कौन से कंट्री के थे? अनूप भट्टाचार्य, तो ये बांग्लादेश के थे, ठीक है। चाइना हैज़ सक्सेसफुली लैंडेड इट्स फर्स्ट मार्स रोवर ऑन द रेड प्लैनेट रिसेंटली। In doing so, China has become the only second country to achieve this historic milestone after the United States. What is the name given to the rover? तो ये जुरोंग नाम दिया गया है, ठीक है। जुरोंग इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जुरोंग नाम दिया गया उस रोवर का। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदरनेस इन पीस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई। नेम द न्यूली इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया के जो गुंजन शाह को CEO बनाया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फुटवेयर कंपनी जो बाटा इंडिया है उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुंजन शाह बनी है। Who has been chosen as the People's Advocate of the United Nations Climate Change Conference COP26? डेविड एटनबोर, ठीक है, डेविड एटनबोर इज़ द करेक्ट आंसर। पीपल्स एडवोकेट इनको चूज़ किया गया है। नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है। नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है। Who has been appointed as the head coach of Indians women national cricket team? तो इंडिया की जो वुमेंस नेशनल क्रिकेट टीम है उसके लिए हेड कोच किसे अपॉइंट किया है? रमेश पवार। ये इंडियन क्रिकेट टीम में पहले थे, लाइक स्पिनर थे, एक राइट हैंड स्पिनर आप कह सकते हो, रमेश पवार, ठीक है। ये बेसिकली महाराष्ट्र से हैं, इनको हेड कोच के लिए अपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ द ईयर? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है। जो व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ लेट श्री सुनील जैन, जो अभी नहीं रहे, तो सुनील जैन बेसिकली जर्नलिस्ट थे, रिमेंबर दिस। प्रोफेशन ऑफ लेट श्री सुनील जैन, ही वॉज अ जर्नलिस्ट। When is the World Telecommunication and Information Society Day observed? तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे बेसिकली 17 मई को मनाया जाता है। मिनी टीवी इज़ अ न्यूली लॉन्च्ड फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस। द सर्विस हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच एंटिटी? तो ये बेसिकली अमेजन इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। जो मिनी टीवी है इज़ अ न्यूली लॉन्च्ड फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस। ये बेसिकली अमेजन इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है।
व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ एम.एस. नरसिम्हन हु हैज़ पास्ड अवे। तो एम.एस. नरसिम्हन बेसिकली मैथमेटिशियन थे। सीनियर पॉलिटिकल राजीव सटाव हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी। तो जो राजीव सताव थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, कांग्रेस पार्टी के थे राजीव सताव। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2021। लुक, जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2021 है ये 17 मई को मनाया जाता है और इसका जो थीम था वो था एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। थीम क्या था? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो 2021 में 17 मई को जो मनाया गया है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था मेज़र योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ठीक है, सो मेज़र योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये कौन इसको मैनेज करता है? आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन। 2020 का जो मिस यूनिवर्स टाइटल था वो बेसिकली एंड्रिया मेज़ा ने जीता है। ठीक है, एंड्रिया मेज़ा इज़ द विनर ऑफ द 2020 मिस यूनिवर्स टाइटल, एंड्रिया मेज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे 18 मई को मनाया जाता है, 18 May। Which state has launched the Ayush Ghar Dwar? Which state has launched the Ayush Ghar Dwar campaign for home isolated COVID-19 positive patient to keep them healthy by practicing yoga? ठीक है, which state has launched the Ayush Ghar Dwar campaign for home isolated COVID-19 positive patient to keep them health by practicing yoga? तो ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये लॉन्च किया है, आयुष घर द्वार। टेनिस में हु हैज़ वन मेन सिंगल्स टाइटल इन द इटालियन ओपन। तो इटालियन ओपन में जो टेनिस में मेन सिंगल्स में राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, जो इटालियन ओपन हुआ था उसमें जो मेन सिंगल्स में राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल स्पेन के हैं और जो वुमेन्स सिंगल टाइटल इसी इटालियन ओपन में ईगा स्वेटिएक ने जीता है। ईगा स्वेटिएक पोलैंड की हैं ये। वुमेन्स का बताया मैंने, वुमेन्स का। ठीक है, मेंस का राफेल नडाल, वुमेन्स का ईगा स्वेटिएक पोलैंड की। नेम द इंडियन हु हैज़ रिसेंटली वॉन द विटले अवार्ड्स 2021। तो कौन सी इंडियन है? नेम द इंडियन हु हैज़ रिसेंटली वॉन द विटले अवार्ड 2021। वाई नुक्लू फॉर्म, वाई नुक्लू फॉर्म इज़ द करेक्ट आंसर। वाई नुक्लू फॉर्म, रिमेंबर दिस, वाई नुक्लू फॉर्म। वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे बेसिकली आपका 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रूज एंड अलायंस। तो ये प्रीत मोहन सिंह मलिक हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रूज एंड अलायंस। तो प्रीत मोहन सिंह मलिक एक ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक लिखा है सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रूज एंड अलायंस। ठीक है, प्रीत मोहन सिंह मलिक। 6th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच वीक ऑफ मई 2021। तो ये बेसिकली 17 to 23 मई को ये इस वीक में जो 6th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है उसको मनाया गया है 17 to 23 मई। करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैम्पियन अवार्ड इज़ अ न्यूली क्रिएटेड अवार्ड बाय विच स्पोर्ट लीग। तो ये अवार्ड अभी अभी नया बनाया गया है, करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैम्पियन अवार्ड। तो ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने बनाया, NBA। NBA इज़ द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेंद्र सिंह जडेजा हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर प्लेयर एंड कोच ऑफ विच स्पोर्ट। तो ये क्रिकेट के थे। राजेंद्र सिंह जडेजा बेसिकली क्रिकेट के फॉर्मर प्लेयर और कोच थे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे 2021 में था उसका थीम क्या था? द फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम्स रिकवर एंड रीइमेजिन।
अभी मैंने आपको ये बताया, ईगा स्विएटेक हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द इटालियन ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट। शी रिप्रेजेंट विच कंट्री? तो ईगा स्विएटेक बेसिकली पोलैंड की हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर हैज़ बिन अनवील्ड इन विच सिटी? यानी इंडिया का जो पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है वो बेसिकली पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया है, ठीक है। कोब ब्रायंट हु हैज़ पास्ट, मतलब कोब ब्रायंट जो कि नहीं रहे, हु हैज़ रिसेंट, मतलब अभी नहीं, लाइक बहुत, लाइक आप कह सकते हो कि एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में, लाइक एयरप्लेन क्रैश की वजह से ये कोब ब्रायंट का निधन हो गया था। तो इनको इंडक्ट किया गया हॉल ऑफ फेम में पोस्टमसली, ठीक है। तो पोस्टमसली मतलब होता है कि जो लोग नहीं रहे, जो मतलब जिनकी डेथ हो गई, जो मर गए हैं, और फिर उसके बाद, उनके मरने के बाद उन्हें कोई अवार्ड मिले तो उसे पोस्टमसली बोला जाता है। तो इन्हें हॉल ऑफ फेम मिला है, रिसेंटली बिन इंडक्टेड इन द हॉल ऑफ फेम। ये कौन से स्पोर्ट्स के थे? तो ये बास्केटबॉल के थे, ठीक है। बास्केटबॉल, कोब ब्रायंट बहुत फेमस थे। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मोबाइल ऐप मोमा मार्केट फॉर होम डिलीवरी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स? तो ये जो मोमा मार्केट है ये बेसिकली मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। डॉक्टर के अग्रवाल हैं एक, ठीक है, जो नहीं रहे, वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड ऑफ मेडिसिन? तो ये कार्डियोलॉजी के फील्ड के, लाइक वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड ऑफ मेडिसिन? तो ये कार्डियोलॉजी से के फील्ड के थे डॉक्टर के अग्रवाल, कार्डियोलॉजी। द सुपर कंप्यूटर नेम्ड सिमॉर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच कंट्री रिसेंटली? तो ये जो सुपर कंप्यूटर अभी सिमॉर्ग का है, ये ईरान का है, ठीक है। ईरान ने इसको डेवलप किया है, सिमॉर्ग। Who among the following has been named for the International Invincible Gold Medal for 2021? यानी कि जो who among the following has been named for the International Invincible Gold Medal for 2021? तो जो International Invincible Gold Medal 2021 में किसको लाइक दिया गया है ये? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक। ये बेसिकली हमारे जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं उन्हें दिया गया, और ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा जो मंत्रालय है, वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं। इनको लाइक इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 के लिए दिया गया है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर चमन लाल गुप्ता हु हैज़ पास्ड अवे वॉज अ सीनियर बीजेपी लीडर फ्रॉम विच स्टेट? तो ये जो चमन लाल गुप्ता थे, जो कि अब नहीं रहे, ये बीजेपी लीडर थे, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के थे, ठीक है। रेनाउड फोल्कलोरिस्ट एंड अक्लेम्ड राइटर की राजा नारायणन हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट? तो ये जो फोल्कलोरिस्ट और अक्लेम्ड राइटर थे की राजा नारायणन, वो तमिलनाडु के थे। रिमेंबर दिस, तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु स्टेट से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SBI RSGO-5 is a missile warning satellite launched recently on Atlas 5 rocket into space. The satellite belongs to which country? यूनाइटेड स्टेट्स का था ये सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया? 20 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड बी डे जो है वो 20 मई को मनाया जाता है। With which organization the Ministry of Tribal Affairs has inked MOU for the digital transformation of tribal schools? जो हमारी ट्राइबल्स अफेयर्स का मंत्रालय है उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ लाइक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इज़ द करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम सेंटर्ड ऑन इंडिया इज़ बीइंग सेटअप बाय विच कंपनी? तो ये रिलायंस जियो सेटअप करेगी। लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम इज़ बीइंग सेंटर्ड बाय इंडिया ऑन इंडिया इज़ बीइंग सेटअप बाय रिलायंस जियो। Which tech giant has partnered with SpaceX to offer high-speed satellite internet to customers worldwide using Starlink satellite system? तो ये बेसिकली गूगल इसको मतलब इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एक जो कौन सी टेक्नोलॉजिकल जायंट है लाइक जिसने पार्टनरशिप किया है SpaceX के साथ,
जो हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट देगी कस्टमर्स को वर्ल्ड वाइड, तो यूजिंग स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम, तो ये गूगल ने साइन किया है, ठीक है। गूगल ने पार्टनर किया है स्पेस एक्स के साथ, रिमेंबर दिस। नाउ नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट एट द वाइट हाउस इन यूनाइटेड स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो जॉय बिडेन है उनकी सीनियर एडवाइज़र कौन है, वो है नीरा टंडन। नीरा टंडन इज़ द करेक्ट आंसर। मोख्तर ओने हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द इंटरीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये माली के प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंटरीम, ठीक है। मोख्तर ओने हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द इंटरीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। जो एटलस 5 रॉकेट है उसको कौन सी कंपनी ने ऑपरेट किया है, तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस इज़ द करेक्ट आंसर। द एटलस 5 रॉकेट इज़ ऑपरेटेड बाय यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड बी डे 2021। तो जो वर्ल्ड बी डे मनाया गया 2021 में, उसका थीम क्या था, तो इसका थीम था बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ठीक है। बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। जो यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज़ करता है इंटरनेशनल टी डे। जो इंटरनेशनल टी डे है वो कब मनाया जाता है, जो यूनाइटेड नेशन इसको रिकॉग्नाइज़ करता है 21 मई को मनाया जाता है ये। द न्यूली लॉन्च्ड ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। द न्यूली लॉन्च्ड ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली इंडियन नेवी ने ORS सिस्टम को लॉन्च किया है, ठीक है। What is the rank of India in the 57th EY Renewable Energy Country Attractiveness Index for 2020? What is the rank of India in the 57th EY Renewable Energy Country Attractiveness Index RECAI for 2020? तो इसमें इंडिया की रैंक 3rd थी, रिमेंबर दिस। इसमें जो इंडिया की रैंक थी वो 3rd थी, ठीक है। So I just want to tell you one thing that look we have done right now, हमने 3 पार्ट कर लिए हैं बेस्ट ऑफ 60 के, 60 we have done 180 questions, okay, ठीक है। and again I am saying these 240 questions are very very important with respect to exam point of view. I am not saying कि ये sufficient है, not at all, but आप एक revision perspective के लिए इसको recommend कर सकते हो। revisions के लिए इससे better questions आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ठीक है। so these questions are very important and recommended with respect to the exam point of view. so again I am saying revise these 240 questions again and again, and if try to cover all these 240 questions, okay, because these are very important questions with respect to exam point of view. and one thing I just want to add that कि ये जो मैंने आपको 4 पार्ट में कराया, एक ही वीडियो में 4 पार्ट में बेस्ट ऑफ 60 240 क्वेश्चंस, ये जो 240 क्वेश्चंस हैं ये सारे आप कह सकते हो जो जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज है, हर एक एरिया को कवर करता है, मतलब हर एक सेक्शंस को कवर करता है। जो भी करंट अफेयर्स के मैंने जो स्ट्रेटजी बताई थी उसमें जितने भी सेक्शंस हैं ना वो हर एक सेक्शन को कवर करता है, ठीक है। सो हमने 3 पार्ट कर लिए, आखिरी पार्ट करते हैं बेस्ट ऑफ 60 का, क्योंकि हमने 180 क्वेश्चन तो कर लिए हैं और 60 क्वेश्चन ऐड करके 240 कर देते हैं, ठीक है। सो हमारा फिर क्या बोलते हैं, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ मे करंट अफेयर्स एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस। What is the new deadline set by the Central Board of Direct Tax to file income tax return for the assessment year 2021 by individuals? तो इन्होंने 30 सितंबर 2021 तक कर दिया है, ठीक है। जो ये जो मतलब न्यू डेडलाइन है, जो डेडलाइन इन्होंने बढ़ा दिया है, 30 सितंबर 2021 तक कर दिया है।
हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड बाय आरबीआई टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज सरप्लस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि जो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को अमाउंट ट्रांसफ़र करेगी एज सरप्लस, वो कितना करेगी 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये बेसिकली 99,122 करोड़, 99,122 करोड़ आपको एज इट इज़ लाइक डाटा याद करना है। 99,122 करोड़ इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मोबाइल ऐप अमृत वाहिनी टू एनेबल बुकिंग बेड्स एट कोविड-19 हॉस्पिटल्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस बाय द पेशेंट्स। तो अमृत वाहिनी बेसिकली झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। जो अमृत वाहिनी जो एनेबल करेगी बुकिंग बेड्स एट कोविड-19 हॉस्पिटल्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस, ये बेसिकली झारखंड की सरकार कर रही है। और झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हेमंत सोरेन, ठीक है। जेएमएम पार्टी के हैं, जन मोर्चा मुक्ति पार्टी और जेएमएम। और इन यहाँ जो झारखंड की जो गवर्नर हैं उनका नाम है, झारखंड की जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य, ओके। झारखंड की जो गवर्नर है, एक सेकेंड। सो जो झारखंड की जो गवर्नर है झारखंड की, वो बेबी रानी मौर्य नहीं है। बेबी रानी मौर्य आपकी उत्तराखंड की गवर्नर है, ठीक है। इसमें लाइक दो कंफ्यूज हो जाते हैं, लुक दो नाम है, बेबी रानी मौर्य और आपकी एक है झारखंड की द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। एक है बेबी रानी मौर्य, एक है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो जो झारखंड की हैं गवर्नर हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और जो बेबी रानी मौर्य हैं, ठीक है, बेबी रानी मौर्य वो उत्तराखंड की गवर्नर हैं, ठीक है। अगेन रिपीटिंग दिस बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, गवर्नर ऑफ झारखंड इज़ द्रौपदी मुर्मू एंड गवर्नर ऑफ उत्तराखंड इज़ बेबी रानी मौर्य, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो this is our next question. The iconic web browser Internet Explorer is set to retire in June 2022. The browser has been developed by which company? The iconic web browser Internet Explorer का रिटायरमेंट हो रहा है, यानी इंटरनेट एक्सप्लोजर को हटाया जा रहा है, ठीक है, जून 2022 में। उसकी जगह कोई नया लाइक सॉफ्टवेयर या फिर जो भी वेब ब्राउज़र है वो उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो दो ब्राउज़र, ये इंटरनेट एक्सप्लोजर किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट अब रिटायर करेगी इंटरनेट एक्सप्लोजर जो वेब ब्राउज़र है उसको, उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है। पिनारी विजयन जो थे हैज़ बीन स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फॉर सेकेंड स्ट्रेट टर्म। तो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये कौन से, मतलब ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कौन सा इनका टर्म है? लुक, पिनारी विजयन हैज़ बीन स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फॉर सेकेंड स्ट्रेट टर्म. He is the 12th chief minister of the state. Look, in the previous questions, one of the questions मैंने like chief minister बताया कि he was the chief minister of 13th बताया, शायद वो 13वें चीफ मिनिस्टर थे। तो मैं जो व्यूवर्स हैं या फिर जो लाइक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक लाइक वो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक इसको चेक करें और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इंट्रोड्यूस करें कि जो पिनारी विजयन है वो जो करंट है उनका वो कौन से वे चीफ़ मिनिस्टर हैं केरला के, ठीक है। केरला के चीफ़ मिनिस्टर हैं पिनारी विजयन, और वो कौन से वे मतलब चीफ़ मिनिस्टर हैं केरला के, इसको लाइक आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। सो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू माई व्यूअर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hero Wired is a new venture launched by Munjal family-led Hero Group. The new startup company is related to which field? तो ये जो फील्ड है ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. जो हीरो वायर्ड इज़ अ न्यू वेंचर लॉन्च्ड बाय मुंजल फैमिली लेड हीरो ग्रुप. हीरो वायर्ड इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी.
The Indian Navy has decommissioned its first destroyer after being in service for 41 years. What is the name of the destroyer ship? तो destroyer ship का नाम है INS राजपूत, जिसको decommissioned किया इंडियन नेवी ने राइट नाउ आफ्टर 41 years of service. ठीक है, INS राजपूत इज द करेक्ट आंसर. What is the maximum amount outstanding in respect of full KYC PPIs, KYC complaint PPIs as set by RBI? तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ फुल KYC PPIs? तो इसका जो सेट किया है RBI ने, ये ₹2 लाख किया है, 2 लाख रुपए. ठीक है, ₹2 लाख. ज्योति कृष्ण दत्त हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो जो ज्योति कृष्ण दत्त थी वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की डायरेक्टर जनरल थी. ठीक है, ज्योति कृष्ण दत्त. As per the recent guidelines by RBI, PPI issuers have to provide interoperability to full KYC PPIs by 31 मार्च 2022 तक का इसका डेट रखा गया है. ठीक है, 31 March 2022. As per the recent guidelines by RBI, PPI issuers have to provide interoperability to full KYC PPIs by 31 March 2022. What shall be the maximum limit of cash withdrawal per transaction in full KYC PPI issued by non-bank PPI user? तो इसमें बेसिकली जो मैक्सिमम कैश विड्रॉवल आप निकाल सकते हो ट्रांजेक्शन में, पर ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन में वो है 2000 रुपये. As per the RBI, what will be the maximum limit of cash withdrawal per transaction via point of sale machine? जो POS मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, उससे अब आप मैक्सिमम जो लिमिट है कैश विड्रॉवल की पर ट्रांजेक्शन बढ़ा दिया गया है. तो मतलब आप कितना निकाल सकते हो? तो उसमें भी 2000 निकाल सकते हो. ठीक है. वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 2021 में जो मनाया गया, उसका थीम क्या था? उसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. RBI हैज़ चेंज्ड इट्स अकाउंटिंग ईयर इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022. व्हाट इज़ द न्यू अकाउंटिंग ईयर ऑफ RBI? तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से बताया अपने प्रीवियस वीडियोज़ में. जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से मार्च हो गया है. ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च. Which among the following bank has recently partnered with AI startup Hyperverge for video banking solution to provide convenient digital banking services to its customer? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया, रिसेंटली पार्टनर किया है विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप ए कंपनी हाइपरवर्ज फॉर वीडियो बैंकिंग सॉल्यूशन टू प्रोवाइड कन्वीनियंट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर. The tentative list of UNESCO World Heritage Site contains total 48 sites from India as of May 2021. How many sites have been added most recently in this TL from India? तो इसमें टोटल 6 sites को ऐड किया गया है. ठीक है, यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कंटेन टोटल 48 साइट्स फ्रॉम इंडिया. उसमें से रिसेंटली कितने को इंट्रोड्यूस किया गया है? तो 6 को. टोटल कितने 48 साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया से घोषित किया गया है. रिमेंबर दिस, 48 साइट्स फ्रॉम इंडिया, रिसेंटली 6. व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला ऑब्जर्व्ड बाय यूनाइटेड नेशन? 23 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला. Who among these is the noted environmentalist and the leader of the Chipko movement who has passed away at 94? तो चिपको मूवमेंट के जो नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट और जो लीडर थे उनका नाम था सुंदर लाल बहुगुणा. सुंदर लाल बहुगुणा. डिपकोवेन इज़ अ COVID-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये DRDO जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन जो हैं G सतीश रेड्डी हैं, जिन्होंने ये लॉन्च किया है. डिपकोवेन इज़ अ COVID-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट. ठीक है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर
3 years टिल 2024। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो नरेंद्र बत्रा हैं, ये इंडिया के हैं। नरेंद्र बत्रा को 3 साल के लिए 2024 तक के लिए बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक सेकेंड, so our next question is HY2D is a new ocean monitoring satellite launched by which country to detect early warning on marine disasters? HY2D is a new ocean monitoring satellite launched by which country to detect early warning on marine disasters? तो जो HY2D है ये बेसिकली चाइना का न्यू ओशियन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जिसने चाइना ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? लाइक अर्ली डिटेक्शन, अर्ली वार्निंग ऑन मरीन डिजास्टर्स, ठीक है, टू डिटेक्ट अर्ली वार्निंग ऑन मरीन डिजास्टर्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which team has won the 2020-21 UEFA Women's Champions League? यानी 2020-21 का जो UEFA Women's Champions League था वो किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। वुमेंस का पूछा है, बार्सिलोना ने जीता है, रिमेंबर दिस। Which state has recently launched the HIT COVID app to track patient isolating at home? तो HIT COVID app बिहार की सरकार ने लॉन्च किया है, बिहार। What was the profession of Ram Lakshman Aka Vijay Patil who has passed away recently? तो जो विजय पाटिल थे वो बेसिकली म्यूज़िक डायरेक्टर थे। What is the theme of 2021 जो इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टुला जो मनाया गया, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टुला जो मनाया गया उसका थीम क्या था? वुमेन्स राइट आर ह्यूमन्स राइट, ठीक है, वुमेन्स राइट आर ह्यूमन राइट्स एंड फेस्टुला नाउ, ये थीम था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द RBI इनोवेशन हब? तो जो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो रिजर्व बैंक का जो इनोवेशन हब है उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो राजेश बंसल को बनाया गया है, राजेश बंसल, रिमेंबर दिस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है। कौन सा प्लेयर है जिसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2000, मैक्स वर्स्टपेन। मैक्स वर्स्टपेन हैज़ वॉन द 2021 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच ओम प्रकाश भारद्वाज हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज द फॉर्मर कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम फॉर विच स्पोर्ट्स इवेंट? तो ओम प्रकाश भारद्वाज जो हैं द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच ओम प्रकाश भारद्वाज हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज द फॉर्मर कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम फॉर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के थे, ठीक है, ओम प्रकाश भारद्वाज, बॉक्सिंग। Who is the author of the book India and Asian Geopolitics, the Past Present? ये बुक किसने लिखी है? इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट प्रेजेंट, शिव शंकर मेनन। हेमंत बिस्व शर्मा हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ विच वर्ल्ड स्पोर्ट फेडरेशन? तो ये बेसिकली जो हेमंत बिस्व शर्मा है हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ विच स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन? तो ये बेसिकली बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के मेंबर इलेक्ट हुए हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के इलेक्टेड मेंबर हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ क्या बोलते हैं, वर्ल्ड स्पोर्ट फेडरेशन फॉर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। ये बेसिकली हेमंत बिस्व शर्मा आपके बेसिकली चीफ मिनिस्टर हैं असम के। अभी इन्होंने सर्बानंद सोनोवाल को रिप्लेस किया है और इन्हें ही रिसेंटली इलेक्ट किया है एज द मेंबर ऑफ काउंसिल फॉर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे, 25 मई। जो फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2021 में जो होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया था 2022 के लिए। अब वो कौन कंट्री होस्ट करेगी? लाइक इंडिया करने वाली थी इसको होस्ट, लेकिन अब
2022 में इसको इंडिया करेगी। लाइक 2021 में इसको इंडिया होस्ट करने वाली थी, फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2021, लेकिन क्योंकि इसको 2022 में शिफ्ट कर दिया है तो अब 2022 में इसको इंडिया, मतलब इंडिया वो कंट्री है जो फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2021 को 2021 जो 2022 में हो चुका है वो इंडिया ही लाइक उसको वो करेगी, मतलब ऑर्गेनाइज कराएगी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज़ इंडिया। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। अच्छा, जो फॉर्ब्स का जो हु हैज़ टॉप्ड द 2020 फॉर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट, हाईएस्ट पेड एथलीट कोनर मैकग्रेगर को दिया गया है। कोनर मैकग्रेगर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट अकॉर्डिंग टू 2021 फॉर्ब्स लिस्ट। विच टीम हैज़ वॉन 2020-21 ला लीगा टाइटल? तो ये एटलेंटिको मैड्रिड ने ला लीगा टाइटल जीता है 2020-21 का। डॉक्टर श्री कुमार बैनर्जी हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो जो डॉक्टर श्री कुमार बैनर्जी जो नहीं रहे वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। व्हाट इज़ द वर्ल्ड टर्टल डे 2021 में जो मनाया गया उसका थीम क्या था? टर्टल्स रॉक। द थीम वॉज मतलब जो 2021 में वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया उसका थीम था टर्टल्स रॉक। जो बार्कलेज एक रेटिंग एजेंसी है उसने इंडिया की इकॉनमी को लाइक जीडीपी ग्रोथ रेट कितना बताया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22? तो जो बार्कलेज है उसने 7.7% बताया। रिमेंबर दिस। वाइपर वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर इज़ अ मोबाइल रोबोट planned to be launched by which country to explore moon? तो जो वाइपर है ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का मोबाइल वाइपर इज़ अ मोबाइल रोबोट, ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, ये इसको लॉन्च करेगी मून को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, ये यूनाइटेड स्टेट्स का मोबाइल रोबोट है। What was the total foreign direct investment inflow attracted by India in financial year 2021 as per the data by DPIIT? तो इसका जो FDI इनफ्लो था वो $59.64 बिलियन था। रिमेंबर दिस, $59.64 बिलियन। Which country is designing a new Earth system observatory to guide efforts related to climate change and disaster mitigation? तो ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट डिज़ाइन कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट इज़ डिज़ाइनिंग अ न्यू अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी टू गाइड एफर्ट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मिटिगेशन। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग है जो अभी रिसेंटली टूटा था फ्रॉम रोने आइस शेल्फ इन एंटार्क्टिका, उसका नाम क्या था? उसका नाम था H76। रिमेंबर दिस, H76। विच स्टेट was the top recipient of foreign direct investment in India during the fiscal year 2020-21? तो जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है वो है गुजरात। गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? तो CBI के जो न्यू डायरेक्टर हैं उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल इज़ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर। द रडार कॉल निसार इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी? तो ये जो निसार है ये बेसिकली इंडिया का है, ठीक है, इंडिया। विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21? तो अब इसमें कंट्री पूछा है, कौन सी कंट्री जो है लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021? तो जो करेक्ट आंसर है वो सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर इज़ द करेक्ट आंसर। नेम द स्टेडियम जिसको मतलब जिसके स्टेडियम के नाम को चेंज कर दिया गया है, किसके नाम पे रखा गया है? ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम।
ये नाम होगा। किसका नाम रखा है? मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। रिमेंबर दिस, जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसका रीनेम कर दिया गया है ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम से। ठीक है, यानी कि जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है अब उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next question is, the government of which state has recently launched Sanjeevani Pariyojana, a virtual home care initiative for home isolated patient with mild to moderate symptoms of COVID-19। तो जो संजीवनी परियोजना है ये बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने। संग यिन हंग has recorded world's fastest ascent of Everest by a woman in just 26 घंटा यानी 26 आवर्स। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो ये बेसिकली हांगकांग की हैं। ठीक है, संग युन हुंग फास्टेस्ट मतलब इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की है, 26 घंटे में ये एवरेस्ट पे चढ़ गए। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये हांगकांग की थी। ठीक है, संग यिन हुंग, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट असेंट ऑफ एवरेस्ट बाय अ वुमन। ठीक है, 26 घंटे में ये एवरेस्ट पे चढ़ गई। ठीक है, तो इनका नाम था संग यिन हुंग। ये हांगकांग की थी, मतलब हांगकांग की हैं, हांगकांग की हैं। जो संग यिन हुंग है वो हांगकांग की हैं। ठीक है, रिमेंबर दिस। नाउ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विथ विच कंपनी to launch RuPay soft point of sale solution for Indian merchants। तो जो NPCI है उसने बेसिकली पेकोर के साथ ये पार्टनरशिप की है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर विथ पेकोर कंपनी टू लॉन्च RuPay सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन फॉर इंडियन मर्चेंट्स। रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जो 2021 का इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन। तो ये बेसिकली 25 से 31 मई को ये इंटरनेशनल वीक मनाया जाता है फॉर सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। ठीक है, और ये कौन ऑब्जर्व करता है? यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है 25 से 31 मई। Next question is, which state has launched Mission Oxygen Self-Reliance scheme to meet the increasing demand for liquid medical oxygen in the state? तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस ये बेसिकली महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है। द चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना हैज़ बीन अनवील्ड बाय विच स्टेट टू सपोर्ट चिल्ड्रेन ऑर्फेंड ड्यू टू कोविड-19। यानी कि जो चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना है has been unveiled by which state to support children orphan due to COVID-19। ठीक है, तो ये जो चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना है ये उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना। ठीक है, हैज़ बीन अनवील्ड बाय द उत्तराखंड स्टेट टू सपोर्ट चिल्ड्रंस ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, सो चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना। Next question is, the International Financial Service Center Authority has constituted an expert committee on investment fund. Who is the chairman of this committee? यानी कि जो IFSCA ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है ऑन इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो इसका चेयरपर्सन कौन है? नीलेश शाह इज़ द करेक्ट आंसर। नीलेश शाह इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड गार्जियन मिनिस्टर्स to oversee implementation of central and state government policy decisions, administrative reforms and other welfare schemes in all the 34 districts of the state? Which state has appointed guardian ministers to oversee implementation of central and state government policy decisions, administrative reforms and other welfare schemes in all the 34 districts of the state? तो ये बेसिकली असम की सरकार ने, जो हेमंत बिस्व शर्मा भी चीफ मिनिस्टर बने असम में, उन्होंने ये गार्जियन मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया टू ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ओके, एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स टिल ऑल द 34 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट।
Now move to the next question. Name the Indian who has recently won the 2021 Princess of Austria's award. Name the Indian who has recently won the 2021 का प्रिंसेस ऑस्ट्रियस अवार्ड किसे मिला है? तो ये अमृत्य कुमार सेन को मिला है, ठीक है, अमृत्य कुमार सेन को. सो द करेक्ट आंसर इज अमृत्य कुमार सेन. Which among these scientists has been conferred with the International ENI Award 2020? CNR Rao. CNR Rao is the correct answer. CNR Rao को इंटरनेशनल ENI अवार्ड मिला है, ठीक है, 2020 के लिए. नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड जो हंगर डे है, वर्ल्ड हंगर डे इसे कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड हंगर डे बेसिकली 28 मई को मनाया जाता है. When is the World Hunger Day observed? तो World Hunger Day is observed on 28th of May, ठीक है. World Hunger Day 28 मई को मनाया जाता है. So look, wait. So we have done so in this particular video we have done best of 64 parts, okay. First, second, third and fourth all contain 60 questions each, ठीक है. सो ये मैंने एक ही वीडियो में आप कह सकते हो सम ऑफ 240 क्वेश्चंस कराए हैं. और ये जो 240 क्वेश्चंस हैं, these questions are most important questions and you can say that these questions are highly recommended with respect to the exam point of view. जो मई में जितने भी बेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स हो सकता है वो मैंने ये 240 क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश की. these questions are very important questions with respect to exam point of view, again I am saying. And look, these are the best of 240 questions, you can say that, for the month of May. And आप क्या बोलते हैं पैरेलली और क्या बोलते हैं अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें और करंट अफेयर्स, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि हाउ टू डील विद दिस करंट अफेयर्स, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सब पार्ट्स ऑफ द करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस. आई हैव टेल यू एवरी सिंगल थिंग रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी ऑन हाउ टू कवर द एंटायर करंट अफेयर्स, हाउ टू कवर द एंटायर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, ठीक है. सो ये बेसिकली आप कह सकते हो ये बेसिकली आप कह सकते हो एक रिवीजन वीडियो है. यू कैन से दिस वीडियो एज अ रिवीजन वीडियो, यानी कि मैं जो भी व्यूवर्स हैं जो भी ये वीडियोस को देख रहे हैं, ये आप एज अ रिवीजन वीडियो मतलब इसको अप्रोच करें कि आपने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं जब आपका वो कंप्लीट हो जाए, या फिर पैरेलली इसके साथ ही साथ आप अगर ये वीडियोस को आप देखोगे तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा हर एक क्वेश्चन का. एंड वन लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड कि जिन्होंने करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए ये बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो है, ठीक है. जिन्होंने करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कुछ भी से बढ़िया तो यही है जो मैं बेस्ट ऑफ 240 क्वेश्चंस 60 मैंने जो प्रीवियसली बेस्ट ऑफ 60 क्वेश्चंस कराए हैं, और ये जो बेस्ट ऑफ 240 क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं इस वीडियो में 4 पार्ट में 60 करके 4 पार्ट्स में मैंने 60 क्वेश्चंस को बेस्ट ऑफ 240 क्वेश्चंस दिए हैं, ताकि जो मैक्सिमम करंट अफेयर्स है एक पर्टिकुलर मंथ का वो कवर किया जा सके. तो ये बेसिकली मई मंथ का था. तो मैं फिर कह रहा हूँ उनके लिए जिन्होंने करंट अफेयर्स अभी बिल्कुल नहीं छुआ है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा. और जिन्होंने करंट अफेयर्स जो कर रहे हैं और पैरेलली अभी पैरेलली करंट अफेयर्स मतलब अलग अलग सेक्शंस को कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये एक रिवीजन वीडियो होगा आपके लिए, जो कि हाईली हेल्पफुल होगा और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करा है इस वीडियोज़ में. सो ट्राई टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओके. सो दिस इज़ इट. एंड लास्टली if you are liking the channel,
And lastly, if you are liking the channel, do subscribe my channel. And if you found anything positive from this video, do like the videos. And if you have any queries regarding this section, comment in the comment section. Okay, when I am free, I am definitely come to your queries for sure and address those queries, but make sure that the queries are relevant. Okay, so look, I have like given you like best of 40 of this May month. Try to grab every single concept of this question. Try to grab these questions. आप ये 240 क्वेश्चन एकदम पढ़ लें पूरी अच्छी तरह से for the exam perspective, or you can say that for the exam point of view. Okay, so this is regarding this. And lastly, again, if you have any benefit from this channel, do subscribe the channel, do like my videos, and if you have any queries, feel free to ask in the comment section. Okay, so this is it, ladies and gentlemen. This is Raj Deepak Singh. Thank you.